We are discussing, we are talking with, of course, anything which you discuss with PTCL is a communication, because there is something which you cannot disclose when you are talking to the customer, because they have their own planning, and we believe in keeping the sanctity of the client client doesn't want to. So we are discussing with PTCL. I can only talk that we are discussing some growth in PTCL, we are discussing in Mobilink, we are discussing Telenor, we are discussing Ufone and others as well. अब अच्छा, इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट एंड मेडिकल फैसिलिटीज में सिमेंस इज अ लीडिंग प्लेयर ग्लोबली. पाकिस्तान में इस साल क्या सेल्स का ट्रेंड रहा इन पाकिस्तान as well? Leading player in, we are having a market share of 30 to 40%, and then we are further growing. I had meetings in different health ministries of different provinces plus center, where we are discussing and giving them some ideas of new hospital, healthcare, insurance and all these things as a consultancy, free, just to upgrade them with the international trends, or the things are moving. Insurance consultancy means how to insure the medical, because we are in healthcare services. We don't only give medical equipment, we give a complete solution of healthcare. From the patient when it enters, when it leaves, what it should cost, and how you can increase with the same equipment more patients. Because you have a CT scan, if you are on the first floor scan, third floor laboratory, fourth floor, the man is going up and down, but if he enters and then move through the area, so then it's a lot of assembly line process. So with the same equipment, without investing anything huge, only in some. तो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और वेल इक्विप्ड अस्पताल हैं, उनको तो सबसे ज्यादा जरूरत है. We are trying to help them out. I had a meeting with Punjab government and Minister Punjab. He is a wonderful man, Mr. Tariq, and we had quite a long discussion with him, and he understood. Obviously, ये कंसल्टेंसी सर्विस तो आप फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं इन पब्लिक सेक्टर इदारों को, लेकिन उसमें पोटेंशियल ये है कि आप जब ये सिस्टम्स बनाएंगे तो प्रॉब्ली मेडिकल इक्विपमेंट भी आपसे खरीदेंगे. There is no free lunch. Of course not. So have ever? For example, power lunch where there is no free lunch. Also not. I am for lunch. I am for the lunch. But I don't. Yes, I'm not having you for free, of course. इसमें earning potential कितना है within Pakistan आपका in the next 3-4 years? Potential तो budget से होता है. Most budget is coming from the government now. So अब government increase कर रही है ना, percentage of their total budget in 3% है या 4% है. जितना जितना ये बढ़ता जाएगा वही आपका बजट है. दिस इज लार्जेस्ट मार्केट शेयर. प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत थोड़ा है इस वक्त पाकिस्तान में, यानी आपको लगता है क्योंकि वो विजिबल बहुत है ना, तो इसलिए आप लोग उधर ही जाते हैं, एलीट क्लास वहां जाती है. प्राइवेट सेक्टर से लगता है सारा मेडिकल जो है वो एलीट वहीं हो रहा है. नहीं होता. तो प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट. सो 163 बिलियन के लोग हैं. हेल्थ केयर सर्विस का पोटेंशियल यू कैन इमेजिन हाउ मच इट कैन बी. इट शुड बी, इफ यू लुक गो फॉर द इंटरनेशनल standard and per person investment required for a Pakistan you cannot imagine. We have to invest another 90%. सोहेल बजाज साहब से हमारी बातचीत जारी रहेगी. इस वक्त मुख्तलिफ एरियाज में जो पोटेंशियल है इसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया. विल एक्सप्लोर दैट फर्दर. फिलहाल चलते हैं ब्रेक की तरफ. देखते रहिए पावर लंच. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं पावर लंच CNBC पाकिस्तान पर. सोहेल बजाज सिद्दीकी साहब ने हाईलाइट किया कि इस वक्त कराची में अगले कुछ सालों में अगर हम वापडा की इस वक्त सपोर्ट निकाल दें तो 1200 से 1300 मेगावाट के दरमियान शॉर्टेज है. एंड ऑब्वियसली दिस शॉर्टेज विल कीप ग्रोइंग एट एन एवरेज रेट ऑफ अबाउट 8%, क्योंकि दैट इज द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर पावर ईच ईयर. तो इसको मीट करने के लिए कॉन्स्टेंटली हर साल एक ना एक पावर प्रोजेक्ट शुरू करना जरूरी है. 2009 तक ही हमें 1200 मेगावाट के करीब को ऑनलाइन लेकर आना है, मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ पावर प्लांट्स को. और एक कंपेटिटिव बिडिंग प्रोसेस है. एक 830 मेगावाट का प्लांट है जिस पर एक बिडिंग प्रोसेस हो चुका है. अब फर्दर नेगोशिएशन चल रही है. सीमेंस बहुत एग्रेसिव है एंड दे होप कि इनको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा. बिन कासिम के साथ ये एफिलिएटेड है. बिन कासिम का जो पावर प्लांट है 85 मेगावाट्स रिकवर कर चुके हैं. इस साल तवक्को की जा रही है 100 मेगावाट्स मजीद उसमें रिकवरी करके दिल ब्रिंग इट अप टू स्पीड. अ टोटल ऑफ अबाउट 250 मेगावाट्स दे विल एनहांस कैपेसिटी विद द एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट आफ्टर रिमूविंग बॉटलनेक्स. इसके अलावा मिडल ईस्ट से बिजनेस काफी सिग्निफिकेंटली ड्राइव होना शुरू हो गया है. इस साल तवक्को की जा सकती है कि तकरीबन 15 अरब रुपए के वर्थ इनको मिल सकते हैं प्रोजेक्ट्स प्योरली फ्रॉम मिडल ईस्ट. तो इस साल इनकी जो टोटल सेल्स थी वो 19 बिलियन थी. सो
You do the math. Mega projects we take once in a time. We don't take in a budget. So normally it's a mega projects and they go over a period of 3 years, 4 years. एक दिन में नहीं है. Of course, इसकी जो sales recognition method होगा. Understand product business and a project business. It's quite a different business. It's basically done on percentage of completion method, जिसमें जितने % project complete होता रहेगा US GAAP standards के मुताबिक और उसकी appropriate cost होगी evaluate करते रहेंगे. But in the next 3 years, at least this 3 to 4 years जो completion time होगा, एक overall 15 billion will be spread across our future is guaranteed. Future is guaranteed. So power plants में काफी काम है. दूसरी उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर की जो सिचुएशन है वो इतनी पैथेटिक है और 160 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन है. You need more equipment. Siemens already पाकिस्तान की मार्केट में 30 से 40% मार्केट शेयर होल्ड करता है. So if every year government spending on healthcare, let's say, goes up by 20%, then out of that 20%, Siemens can potentially get market share. So no doubt in the sales mein mega city is very important, which is Karachi has been declared as a mega city now and this year. So there will be a lot of potential in this city to bring mass transit, roads, infrastructure in this. अच्छा, mass transit पर भी Siemens का interest है. जी. उसमें क्या potential है? One of the largest mass transit providers in the world, of course. So we are trying to have 1 or 2 projects in Karachi. Already ये तो मुस्तफा कमाल साहब announce कर चुके हैं कि इस पर काम. We are in discussion. We are in partnership with some people and we are also in other corridors going alone. इसका कब तवक्को की जा सकती है bidding process? ये इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि साल के एंड तक कोई ना एक आध इसी साल के एंड तक एक आध प्रोजेक्ट तो एंड हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा अभी within a month. हाँ, क्लोज हो जाएगा. उसके बाद जाहिर है फिर they'll have, you're telling me they could potentially have the bidding process and select one. Yes. For which project? This you can ask the city government, but there will be one. अच्छा, चलिए आप 3 जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनका नाम बताओ. कॉरिडोर नंबर 1 सिलेक्ट हो जाएगा. कॉरिडोर नंबर 1 और कॉरिडोर नंबर 1 ये साउथ सोराब से लेके ये आपको ईस्ट साइड ऑफ द सिटी टावर तक 18 किलोमीटर. So it's going to run east to west. Yeah, 18 kilometers. So rather west to east. Wow, how interesting. Yeah, maybe. Yes, east to west. No, not south to something, ना, because नहीं, टावर यहाँ पे है. So south west से north east, south west से north east of the city. This is what is. Wow. और अगर ऊपर से ring roads बन जाएं, so it's going to be a good setup. The roads are. Karachi is going through a lot of infrastructure projects at the moment. People are a little bit fed up with this, but of course, future is bright, ना. But you have to take pain to. नहीं, हमको नजर आना शुरू हो गया. For example, अगर आप थोड़ा लेना पड़ेगा ना सर. अगर आप चंद्री के रोड से साइड जाना चाहें तो आप 10-12 मिनट में पहुंच सकते हैं. ये चीजें अच्छी हो रही हैं. अब शायद शुरू में तो परेशानी होती, जब आप अच्छी चीजें करते हैं तो पीपल शुड हैव सम पेशेंस एंड आई होप दैट. वैसे अभी वे फ्लाईओवर बनाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है ट्रैफिक में. ऑब्वियसली जब बन जाएगा तो सब होगा. जब मास ट्रांजिट बनेगा, इस परेशानी से सारी दुनिया गुजरी है. यू हैव टू गेट थ्रू. देखिए आप कैसे बनाएंगे? हवा में तो नहीं बना सकते या लाके तो नहीं रख सकते. ऐसा तो नहीं है कि लैब पे आपने घर में जाके सोफा रख दिया. इट हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड देन व्हेन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन यू हैव प्रॉब्लम्स. और दुनिया इससे गुजरती है. लोग कहते हैं सॉरी डाइवर्जन दिस. आप दुनिया में देखते रहे, ये होता रहता है. और इसकी बेहतरी ये है कि आपके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप हो जाएगा तो लोगों को अंदाजा नहीं है कि उनके लिए कितनी एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होंगी, कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होंगी और क्या क्या बेहतरी पैदा हो जाएगी. देखें बहुत सारी चीजें इसकी बाई प्रोडक्ट होती हैं, जैसे स्ट्रीट क्राइम है, ये है वो है. सब लोग बिजी हो जाएंगे, सारे लोग खत्म हो जाएंगे, सारे जो न्यूसेंस वैल्यू खत्म हो जाएगी. नॉट ओनली दिस, अदर न्यूसेंस थिंग जो हो जाती है वो इसलिए हो जाती है कि लोग बेकार होते हैं तो कुछ ना कुछ करते हैं ना. तो ये बहुत जरूरी है. हमारे बहुत सही डायरेक्शन पे गवर्नमेंट जा रही है इस वक्त ना. हाँ, सबको सपोर्ट करना चाहिए और इसको तेजी से करना चाहिए, बल्कि ज्यादा प्रेशर करना चाहिए कि इसे जल्दी जल्दी करें. और कराची की जो गवर्नमेंट है, कराची की जो गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट, उसका इशू हमेशा रहा है कि स्पेशली जो आपने जॉब्स वाली बात की कि जॉब्स क्रिएट होंगी. वो कहते हैं कि जब कोई नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं तो नॉर्थ से एक इन्फ्लक्स होता है शहर में. लोग जॉब्स के लिए आते हैं, हर साल आते हैं. तो and they come and they work for less money, so they get absorbed and when the projects end they don't leave. Is that true? ऐसी बात नहीं है. देखिए जिसको जो काम आता है वो करता है. मिसाल के तौर पे कुछ लोग एक्सपर्ट्स हैं खुदाई में, कुछ लोग एक्सपर्ट्स हैं हाईटेक में, कुछ लोग एक्सपर्ट्स हैं किसी चीज़ में, मेसनरी में. ये एक दुनिया में यही तरीका है कि कुछ इलाके किसी ना किसी चीज़ की एक और कॉम्पिटेंस रखते हैं. आप उसे चेंज नहीं कर सकते ना. तो वो अगर आते हैं, करते हैं, चले जाते हैं. जब जहाँ जॉब शुरू होता है, लाहौर में शुरू होगा वो लाहौर चले जाएंगे, मुल्तान में शुरू होगा वो मुल्तान. देखिए जहाँ जॉब, अब लोग दुबई क्यों जाते हैं? शुरू में एक जमाने में एक आप देखते हैं दुबई चलो ड्रामे भी आते थे. भाई अब कौन कितने लोग दुबई चलो पे ड्रामा बना रहे हैं? कोई नहीं जा रहा. इसलिए कि वहाँ काम था, लोग दुबई जा रहे थे. अब वहां जाके कितने रह गए आप मुझे बताइए? कोई नहीं रह गया. जब काम खत्म हो गया तो खुद ही वापस वहां चले जाते हैं जहां पर. देखिए ये तो जहां काम